starting today with another topic, that is agriculture. We will continue the second chapter of Indian economy. So let us see first of all what agriculture, what was the condition of agriculture from 1950 to 1990. Okay, so I will just read it out. In the previous chapter we have learned that there was neither growth nor equity in the agriculture sector during the colonial rule. At the time of independence, the land tenure system was characterized by intermediaries like zamindar who merely collected rent, lagans from the actual tiller of the soil, low productivity of agriculture sector forced India to import. तो ये सब जो है हम लोगों ने ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर कि क्या जमींदारी सिस्टम था, उसमें फार्मर्स को ज़्यादा फायदा नहीं होता था, ये सब जो प्रॉब्लम है ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में, तो इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं जाऊँगा। और आपको ये भी पता है कि 70 to 75% आदमी जो थे दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, नाउ features I will just go in a very summarized way, one by one I will tell you in very summarized way. Okay, I will not go line by line because this is a huge topic, so it will take a lot of time. Okay, so first, features or problems of agriculture. So what was the basic problems? Low productivity. So during the time of independence there was a low productivity obviously, and in 1950, which is very close to independence era, so that because of that reason the productivity of the land was very much low. As you know, there was not availability of high yielding variety of seed also, so because of that reason the land was very much low productive. Now discussed unemployment. Now what is this, the meaning of this unemployment? This is a very important topic, and just I will explain you a very good way. First of all, let me read it out, this topic. It refers to a state in which more people are engaged in a work than really needed. So this topic also we have done in the first chapter, where people are where suppose a plot of land is there. I had already explained, you can see my videos. So where suppose one plot of land is there and too many people are, if they are working, this type of unemployment is known as discussed unemployment. So because of this reason the productivity also came low. Okay, now high dependency on rainfall. So we were all together dependent on rainfall and natural means nature's favor, nothing else than that, nature's favor. तो हम लोग ज़्यादातर जो थे सो नेचर पे डिपेंड करते थे, और हम लोगों का कुछ खुद का कुछ ऐसा नहीं था जुगाड़ जो जिसके हिसाब से हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर पाए। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता था, कभी बारिश हुई तो अच्छा है, बारिश नहीं हुई, जिस टाइम में बारिश होने का उस टाइम में होता नहीं था, जिस टाइम में बारिश नहीं होने का उस टाइम में बारिश हो जाता था, और डिपेंड करता था, जिस टाइम में धूप चाहिए था उस टाइम में धूप नहीं होता था, तो इस वजह से ये सब प्रॉब्लम था। फिर है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टेनेंट्स एंड द लैंडलॉर्ड्स। ये सब ऑलरेडी हम लोगों ने, ये जो टॉपिक है ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। और जो फार्मिंग भी था, जैसे पॉइंट नंबर 4 है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये फार्मिंग जो था वो एक्चुअली क्या था बोलिए तो सिर्फ डिपेंडेंट था कि हम फार्मिंग करेंगे, जितना भी उससे आएगा क्रॉप वगैरह खुद सेल्फ कंजम्पशन कर लेंगे, और ज़्यादा उसे यूज़ नहीं करेंगे, सेल करने के पर्पज से यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो वही था। और उसके बाद था आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी तो था ही, हल से काम होता था, ट्रैक्टर वगैरह अवेलेबल नहीं था, थ्रेशिंग मशीन वगैरह अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होता था। फिर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टीनेंट एंड लैंडलॉर्ड्स। तो टीनेंट और लैंडलॉर्ड्स पता ही है, टीनेंट मतलब जो होता है जो उस लैंड में काम करते हैं, तो उनके जिसे वो जमीन दिया जाता है कि आप काम कीजिए, और लैंडलॉर्ड जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड होता है, तो उनके बीच में एक बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट था। इसी वजह से जमींदारी सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। ठीक है, पॉलिसीज फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पॉलिसीज क्या क्या था जिससे एग्रीकल्चर डेवलप कर पाए। सो मेजर्स टू प्रमोट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रेवोल्यूशन। ये दो जो टॉप पॉइंट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दैट इज लैंड रिफॉर्म। लैंड में लैंड सिस्टम, जैसे जमींदारी सिस्टम जो था वो भी एक लैंड रिफॉर्म का पार्ट था। उसमें भी क्या हुआ, जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया और न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह लाया गया। सो बहुत सारा रिफॉर्म्स आया। और उसके बाद है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन तो सिंपल आप लोगों को पता है, आप लोगों ने जैसे नीचे के क्लास वगैरह में पढ़ा होगा, 10 में 9 में 8 में। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड का जब यूज करके क्रॉप को ग्रो किया जाता है, दैट इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन, अ पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट वी हैव, लेट अस सी इन अ वेरी
brief way, that is land reforms. So land reforms primarily refers to change in the ownership of land holding. तो ये जो मैक्सिमम सीलिंग ऑफ लैंड, जो टॉपिक हम लोग अभी फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, जो मैक्सिमम एक आदमी एक लिमिट तक ही लैंड होल्ड कर सकता है, वो सिस्टम लाया गया। तो इसी ये भी एक रिफॉर्म का पार्ट था। जैसे जमींदार लोग थे, वो लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा लैंड होल्डिंग उनके पास होता था, मीन्स बीघा बीघा में लैंड होता था उन लोगों के पास। उससे क्या करते थे, वो लोग रिच क्लास रहते थे, तो इक्विटी भी नहीं हो पाता था पुअर और रिच के बीच, तो ये भी एक प्रॉब्लम था। तो क्या किया गया, एक मैक्सिमम सीलिंग ऑफ लैंड फिक्स किया गया कि एक आदमी के पास इंडिविजुअली इतना ही लैंड ओन कर सकता है कोई। सो दैट वाज द लैंड रिफॉर्म, प्राइमरी रेफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। ओके, land reform measures have been introduced by various underdeveloped and developing countries for attaining a rational land distribution pattern and viable farming structure. There was a great need for land reform in a country like India, where majority of its population still depend on agriculture. Land reforms were needed to achieve objective of equity in agriculture. मैंने जैसे ये पॉइंट आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। Abolition of intermediaries. Indian government took various steps to abolish intermediaries and to make tiller the owner of the land. The idea behind this step was that the ownership of land would give incentive to the actual tiller to make improvement, provided sufficient capital was made available to them. Abolition of intermediaries, जो बिचौलिए थे, intermediaries मतलब होता है जो बिचौलिए, तो वो बिचौलिए को हटा दिया गया। जैसे क्या होता था, टिलर और जो लैंड का एक्चुअल करते थे उसके बीच में कौन आ जाता था, जमींदार आ जाते थे। उनको पहले लगान देना पड़ता था, फिर वो, मैंने इस सिस्टम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं इस पर। आप प्रीवियस वाले वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगा ये। तो इसमें क्या होता था, जो लैंड, जैसे लगान मूवी आप लोगों ने देखा होगा, उसके हिसाब से अब क्या था, ब्रिटिश इंडिया को हर समय एक लगान के रूप में कुछ चाहिए था, जैसे टैक्सेस हो गया उन लोगों के लिए वो। तो क्या करते थे, अल्टीमेटली कहाँ किससे कलेक्ट होता था, फार्मर से कलेक्ट होता था। तो फार्मर क्या करते थे, जमींदार को देते थे, जमींदार फिर उस स्टेट का जो प्रिंसली स्टेट जो होता था उस प्रिंस या तो किंग को मिलता था, फिर किंग क्या करते थे, ब्रिटिश इंडिया को देते थे, इस तरह का सा। तो जब ब्रिटिश चले गए तो उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया सिर्फ जमींदार बचे और टीलर बचे। तो ये जमींदार बिचौलिए थे, तो इनको हटाया गया। The ownership right granted to tenant gave them the incentive to increase output and this contributed to growth in agriculture. तो पहले क्या होता था, हम दूसरे की ज़मीन में काम कर रहे हैं, कितना भी हो ज़्यादा हो, हमें तो जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, फिक्स्ड है, तो मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता था। हर समय आदमी क्या होता है, अगर आपको आपका बॉस बोले कि चलो तुम ये कंप्लीट कर लो, ये टास्क कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें बोनस दूंगा, बहुत बम्पर है, चलो तुम्हें फॉरेन ट्रिप पर भेज दूंगा, तो आप कितना खुशी हो जाएगा, वो काम करने लगेंगे और ज़्यादा मेहनत से। तो आपको क्या चाहिए, हर काम के लिए एक इंसेंटिव चाहिए, एक बूस्ट चाहिए हर चीज़ के लिए। अगर आपको अगर पता रहे कि हाँ चलो हम ये पढ़ लेंगे तो मुझे 90% मिल जाएगा, तो आप भी वो चीज़ करोगे। नहीं करते हो वो अलग बात है, लेकिन करोगे जरूर, है ना। फिर however the goal of equity was not fully served by abolition of intermediaries because of the following reason. But ये जो गोल था, वो इंडियन गवर्नमेंट का जो गोल था उस टाइम में, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। बहुत हद तक हुआ, लेकिन बहुत हद तक नहीं भी हुआ। उसका रीज़न क्या था जो कि नहीं हुआ, क्यों? ठीक है, in some areas the former zamindars continued to own large areas of land by making use of some loopholes in the legislation. मतलब जो रूल्स था उसमें बहुत सारा फ्लॉज बच गया था, बहुत सारा खामी था। इसके वजह से क्या होता था, वो लोग इसका एडवांटेज लेके लैंड होल्डिंग रखते थे। ये अब फ्लॉज क्या है मैं आपको क्लियरली अभी बता देता हूँ, ठीक है। फ्लॉज ये था कि सपोज आपके परिवार में, उनके परिवार में सपोज 5 आदमी हैं, तो वो लोग क्या करते थे, गवर्नमेंट ने तो फिक्स किया था मैक्सिमम लैंड होल्डिंग कैपेसिटी एक जन का, इंडिविजुअल का। वो लोग क्या करते थे, अपने ही परिवार में डिफरेंट को उस जमीन का ओनर बना देते थे। उससे क्या होता था, सारा जमीन भी उनके पास और वो फ्रूट्स भी इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। In some cases, tenants were evicted and zamindars claimed to be self-cultivated. अब दूसरा क्या करते थे जमींदार, ठीक है तुमको काम नहीं करना पड़ेगा, हम अपना लेबर रख के काम करवा लेंगे। तो फार्मर्स को एक्चुअली में काम नहीं करना पड़ता था, वो लोग क्या करते थे, पेड लेबर रख लेते थे, काम किया, झड़ गया और सारा चीज़ उनका प्रॉफिट हो जाता था, ठीक है। और बहुत जगह से उन्हें निकाल दिया गया, ऐसे क्या हो गया, वो लोग अनएम्प्लॉयड भी हो गए। Even after getting the ownership of the land, the poorest of agriculture labor did not benefit from the land reforms. उनके पास लैंड होते हुए भी वो कल्टीवेट नहीं कर पाते थे। उसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न ये था कि उनके पास पैसे नहीं थे, सीड्स खरीदने के पैसे नहीं थे, प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूज करने का पैसा नहीं था, तो इस वजह से वो कर ही नहीं पाते थे, ठीक है।
अब लैंड सीलिंग जो मैंने आपको बताया, लैंड सीलिंग मतलब होता है मैक्सिमम कैपेसिटी और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड अ पर्सन कैन होल्ड। एक इंडिविजुअल के पास कितने लैंड हो सकता है, उसका मैक्सिमम लिमिट सेट कर देना, ठीक है। सो लैंड सीलिंग रेफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड व्हिच वुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। Beyond the specified limit, all the land belonging to a particular person would be taken over by the government and will be allotted to the landless cultivators and small farmers. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लैंड सीलिंग, बहुत बार क्वेश्चंस भी आता है इससे, व्हाट इज लैंड सीलिंग और डिफाइन लैंड सीलिंग। तो लैंड सीलिंग क्या है, एक मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लैंड जो एक आदमी होल्ड कर सकता है, उसके बाद वो सारा लैंड अगर उससे ज़्यादा है किसी के पास अगर, तो उसके बाद वो गवर्नमेंट को चला जाता है और गवर्नमेंट क्या करती है, उसको ट्रांसफर कर देती है जो पुअर फार्मर है उसको। द पर्पस आपको पता ही है क्यों किया गया, फिर भी मैं बहुत जल्दी पढ़ देता हूँ उसको। द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वाज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स। मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ लैंड का बहुत मतलब सिंपल बात है, अमीरों को जमींदार को हटाना, ठीक है। लैंड सीलिंग हेल्प टू प्रमोट इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, इक्वालिटी लाया एग्रीकल्चर सेक्टर में। However, the land ceiling legislation was challenged by the big landlord. They delayed its implementation. चैलेंज कहाँ हुआ, कोर्ट में चैलेंज हुआ कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसमें ये है वो है। तो आपको पता ही है कोई मैटर अगर कोर्ट में जाता है, कोई सिविल केस अगर कोर्ट में जाता है तो हो सकता है बहुत दिन उसमें टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे केसेस रहते हैं, ठीक है। This delay time was used by them to get the land registered in the name of close relative, thereby escaping from legislature. तो इस डिले के बाद क्या हुआ, मैंने जैसे आपको बताया कि अपने अपने फैमिली मेंबर पे रजिस्टर कर देते थे वो लैंड। अब कंक्लूजन है, देख लेते हैं, बहुत जल्दी से पढ़ देता हूं मैं इसे। लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन केरला, वेस्ट बंगाल बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ दीज स्टेट्स वर कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म। अनफॉर्चुनेटली अदर स्टेट डिड नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड वास्ट इनइक्वालिटी इन लैंड होल्डिंग कंटिन्यूड। ये दो स्टेट जो थे केरला और वेस्ट बंगाल, उन्होंने ही सक्सेसफुली इस लैंड रिफॉर्म सिस्टम को इंप्लीमेंट कर पाए, बाकी नहीं कर पाए बहुत सारा खामी की वजह से, ठीक है। उसके बाद आया न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। उसके बाद क्या आया, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन को जो थर्ड प्लान था उसमें इंक्लूड किया गया 1960 के बाद, ठीक है। So the traditional agriculture practices followed in India were gradually being replaced by modern technology and agriculture practices. The aim of this strategy was to raise agriculture production and productivity in selected region of the country through introduction of modern inputs like fertilizer, credit, marketing facilities, etc. तो ये सब न्यू टेक्नोलॉजी आया। न्यू टेक्नोलॉजी आने के बाद फार्मर्स को अच्छे अच्छे सीड्स वगैरह मिलने लगे, सीड्स में मार्केटिंग होने लगा उनका प्रोडक्ट का। चलिए बासमती राइस है, ये राइस है, वो राइस है, ये दाल है, इतना अच्छा क्वालिटी का है। सो ये सब होने लगा, तो इससे क्या वो आदमी अट्रैक्ट होते थे। तो मार्केटिंग करने से पता चलता है किसी को कि चलो ये प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन ज़्यादा डीप में आपको बताने का जरूरत भी नहीं है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, जानते हो और बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता ही है कि हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड से यूज़ करके जो क्रॉप्स उगाया जाता था उसी को ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो है बहुत ही अच्छा मतलब फ्रूटफुल था इंडिया के लिए, इंडिया जैसा देश के लिए। और बट इसमें कुछ और खामी भी थी, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। बहुत जल्दी मैं पढ़ देता हूँ इसे। At the time of independence, about 75% of population was dependent on agriculture. जानते हैं आप लोग, India's agriculture vitally depends on the monsoon. In the case of shortage of monsoon, the farmer had to face lot of trouble. ये भी पता है आपको। Moreover, the productivity in the agriculture sector was very low due to use of outdated technology and absence of required infrastructure. ये भी पता है आपको कि टेक्नोलॉजी बहुत पुअर था और पुअर टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग और वेदर कंडीशन पे भी हम लोग डिपेंड रहते थे, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इतना हाई नहीं हो पाता था। एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव एंड कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑफ मेनी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, दिस स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर वाज परमानेंटली ब्रोकन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। तो बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद ये सीड आया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स। मतलब इसके वजह से जो प्रोडक्शन एक बार में इंक्रीज हो जाता है हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड यूज करके, उसी को हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। हाई HYV सीड्स मेन रीजन फॉर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। अब इसका रीजंस क्या था एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का, ठीक है। तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ऑकर्ड प्राइमरी ड्यू टू द मिरेकल ऑफ न्यू वंडर सीड्स। न्यू वंडर सीड्स किसको बोला जाता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को ही बोला जाता है।
which raised agriculture yield per acre to incredible height। मतलब एक पैरामीटर सेट किया गया कि इतना एकड़ में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड कितना प्रोडक्शन दे पाती है, ठीक है। These seeds can be used in those places where there are adequate facility for drainage and water supply। उसी जगह पे यूज होगा जहाँ पे वाटर सप्लाई अच्छा है, सारा कंडीशन बहुत अच्छा है, तब अच्छा रिजल्ट देगा। मतलब ये एक ऐसा सीड था जिसे क्या बोलते हैं, एक कंडीशनड एनवायरनमेंट में ही आप उगा सकते हैं, तभी जाके वो बेस्ट रिजल्ट देगा। बोलते हैं ना कि अगर कोई चीज़ भी आप लेके आते हैं, सपोज सब्जी लेके आते हैं या कोई चीज़ भी लेके आते हैं, तो पर्टिकुलर टाइम के लिए इसे पकाना है, अभी नमक डालना है, अभी ये डालना है, वो डालना है, मतलब टाइम फिक्स होता है हर चीज़ का। उसके बाद ये जाता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो हर चीज़ के लिए एक कंडीशन एनवायरनमेंट चाहिए जिससे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। As compared to other ordinary seeds, these seeds need heavy doses of chemical fertilizers, 4 to 10 times more fertilizers। मतलब नॉर्मल सीड से इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स चाहिए। तो इसका तो एक हार्मफुल इफेक्ट ये भी हो गया कि इसे फर्टिलाइजर चाहिए जो तो महंगा हो जाएगा ये, तो और फार्मर के लिए डिफिकल्ट होने वाला था ये, तो हम आगे अभी देखेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा था कि प्रॉब्लम्स तो सॉल्यूशंस आ रहा था, लेकिन वो भी पुअर फार्मर के लिए बहुत कम था ये भी। To get the largest possible production, so to derive benefit from high yielding variety seeds, India need to have reliable irrigation facility and financial resources to purchase fertilizers and pesticides। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो प्रोडक्शन को हाई करने के लिए इतना सारा कंडीशन चाहिए था, तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए पैसा भी चाहिए था और ऊपर से क्या बोलता है रिसोर्सेज भी चाहिए था, दोनों ही अवेलेबल नहीं था। इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन 2 phases। 2 phases में इंडियन रेवोल्यूशन मतलब ये हुआ, वो 2 phases क्या है देखते हैं। इन फर्स्ट फेज mid 60 to mid 70s the use of high yielding variety seeds was restricted to more affluent states like पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एक्सेट्रा। मतलब ये कुछ स्टेट जो थे बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा रिच स्टेट थे एग्रीकल्चर के मामले में, उन्होंने यूज़ करना इसे स्टार्ट किया। और सेकेंड फेज में क्या हो गया, मिड 70 से लेकर मिड 80 तक हाई यील्डिंग वैरायटी टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू लार्ज नंबर ऑफ स्टेट और सब लोग इसे बेनिफिट करने लगे। इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इसका इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन का। द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी। इससे क्या हुआ देखिए, क्रॉप्स जो है ज़्यादा होने लगा, तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया, इंडिया को किसी और देश पे डिपेंड नहीं रहना पड़ा क्रॉप्स के लिए, तो इससे इंडिया को सेल्फ सफिशिएंसी आया। बट प्रॉब्लम्स भी था, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अटेनिंग मार्केट सरप्लस। ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस refers to that part of agriculture produce which is sold in market by the farmer after meeting their own consumption requirement। तो अटेनेबल मार्केट सरप्लस मतलब क्या होता है, आप खुद के लिए कंज्यूम कर लिए, अब हम सेल कर पाएंगे। तो हर फार्मर के पास अगर सरप्लस आने लगेगा तो वो मार्केट में जाएगा, ठीक है, और मार्केट में जाएगा तो बिकेगा और फार्मर को प्रॉफिट होगा तो वो और नेक्स्ट टाइम और वो ज़्यादा उगाएंगे, उन्हें बूस्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। बफर स्टॉक मतलब होता है ह्यूज क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स होने लगा और उसका स्टॉक भी करने लगा कि हम किसी भी टाइम उसे यूज़ कर सकते हैं, जब क्रॉप्स नहीं हो या बैड क्रॉप्स हो तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। और इससे क्या हुआ, लार्ज प्रोडक्शन होने से दाम जो है कम हुआ। ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ का प्रोडक्शन हाई है तो डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई है, तो क्या होगा, उसका प्राइसेस ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा। सिंपल डिमांड और सप्लाई का ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व थे ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर में, वो भी हम देखते हैं। रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। So high yielding variety crops were more prone to attack by pests. So there was a risk that small farmers who adopted this technology could lose everything in pest attack. However, this risk was considerably reduced by the services rendered by the research institutes established by the गवर्नमेंट। तो ये जो सीड्स होते हैं ये कंडीशन एनवायरनमेंट के लिए बने होते हैं और ऐसा होता है कि इसमें पेस्ट अटैक भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा नुकसान होता है। तो एक तरफ एडवांटेज है तो दूसरी तरफ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। उसके बाद है रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज। अब इनकम इनइक्वालिटी कैसे होगा, जो फार्मर हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड यूज नहीं करेंगे उनका क्रॉप कम होगा और जो फार्मर ज़्यादा इसे यूज करेंगे उनका क्रॉप ज़्यादा होगा। तो अल्टीमेटली वही हुआ, जमींदारी वाला ही सिस्टम हो गया कि और कौन यूज कर पाएंगे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को, जिनके पास सारा रिसोर्सेज अवेलेबल है, पैसा है, वही यूज कर पाएंगे। तो फिर से वो गैप जो है कम करने का कोशिश फिर से व्यर्थ हो गया। हाउएवर
ड्यू टू फेवरेबल स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट दिस फेयर डिड नॉट कम ट्रू। लेकिन ये फेयर जो था वो क्या हुआ, सच साबित नहीं हुआ, बहुत हद तक सच साबित नहीं हुआ लेकिन हुआ। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट, कितना भी लोन हो लेकिन पुअर फार्मर के रीच में नहीं था अल्टीमेटली, लेकिन गवर्नमेंट ने कोशिश किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जाते हैं इस पे, डिबेट ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर। सब्सिडीज इन कंटेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर मींस दैट फार्मर गेट इनपुट्स एट प्राइसेस लोअर देन द मार्केट प्राइस। ठीक है, मतलब फार्मर को हर चीज कम दाम में मिलता था कंपेयर टू मार्केट प्राइसेस में। ठीक है, सब्सिडाइज रेट में मिलता था, अभी भी मिलता है। ठीक है, ड्यूरिंग द इनिशियल फेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन न्यू टेक्नोलॉजी वाज लुक्ड अपॉन एज बीइंग रिस्की बाय द फार्मर। मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में मैं बताया था, इससे पहले वाले पार्ट में भी, कि हम लोग कोई चीज़ को अडॉप्ट करना नहीं चाहते हैं। हम लोग थोड़ा इंडियंस जो है थोड़ा हम लोग ऑर्थोडॉक्स तरीके से ही चलना चाहते हैं, हमारे कंफर्ट जोन में ही चलना चाहते हैं। नया कुछ करने की बहुत, किसी को भी नया चीज़ करने में, ये स्वाभाविक सी बात है, किसी को भी नया चीज़ करने में थोड़ा डर लगता है, तो फार्मर्स को भी डर लगता था इस पर। ठीक है, सो इट वॉज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू ग्रांट सब्सिडीज टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर एडॉप्टेशन ऑफ न्यू हाई यील्डिंग वैरायटी टेक्नोलॉजी। However, with the passage of time, there has been a debate over the huge amount of subsidies granted by the government. ये गवर्नमेंट ये सब्सिडाइज कर करके भी फायदा नहीं हो रहा था, बट इस पे डिबेट था कि इतना सब्सिडी गवर्नमेंट क्यों दे रही है। ठीक है, लेट अस डिस्कस द पॉइंट इन फेवर एंड अगेंस्ट द ग्रांट ऑफ सब्सिडी। इसका फेवर और इसका अगेंस्ट में जो पॉइंट्स बोला गया वो देख लेते हैं, बहुत जल्दी देख लेते हैं। इकोनॉमिस्ट इन फेवर ऑफ सब्सिडीज, द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चर सब्सिडीज एज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी रिस्की बिजनेस। है ही तो रिस्की, क्योंकि बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है फार्मिंग। एक तरफ आप देखिए वेदर कंडीशन पे, पेस्ट पे, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर कुछ भी हो तो कोई जानवर भी आके खराब कर सकता है, नेचुरल क्लेमिटीज भी आ सकता है, उसकी वजह से भी नुकसान होता है। तो बहुत वेरिएशन, शेयर मार्केट से भी ज़्यादा ये वेरी करता है, रिस्क है इसमें। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स आर वेरी पुअर एंड दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स विदाउट द सब्सिडी। ये फॉर्म में बोला गया था, फेवर में बोला गया था। Eliminating subsidies will increase the income inequality between rich and poor farmers and will violate the ultimate goal of equity. Means ये क्या होगा, ये जो ultimate goal of equity है, माने equality है, उसको violate करेगा अगर सब्सिडी नहीं मिलेगा तो। ठीक है, तो फिर नीचे का मैं सेक्शन नहीं पढ़ता हूँ, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इकोनॉमिस्ट अगेंस्ट जो थे सब्सिडीज का वो क्या बोले देखते हैं। According to some economists, subsidies were granted by the government to provide an incentive for adoption of new high-yielding variety technology. So, after the wide acceptance of technology, subsidy should be phased out as their purpose has been served. मतलब एक टाइम तक सब्सिडी दिया गया पूअर फार्मर को हेल्प करने के लिए, उनका हेल्प हो गया, अब क्या करना चाहिए, इसे हटा देना चाहिए। ठीक है, subsidies do not benefit the poor and small farmer target group as benefit of substantial amount of subsidy go to fertilizer industry and prosperous farmer। तो सब्सिडीज क्या होता है, देखिए सब्सिडी दिया मतलब सबको मिलता है सब्सिडी, पूरे क्लास ऑफ फार्मर्स को एक साथ में मिलता है सब्सिडी। तो क्या होता है, जो रिच रहते हैं उनको ज़्यादा फायदा हो जाता है, जो पुअर रहते हैं ऑलरेडी पुअर रहते हैं, तो फिर इक्विटी अचीव नहीं हो पाता, उनका ये कहना था। ठीक है, और इससे ज़्यादातर फायदा जो होता था किसका होता था, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह सेल करते थे उनका फायदा होता था, क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने पहले भी पॉइंट डिस्कस किया कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स लगता था। ठीक है, 10 टाइम्स ज़्यादा लगता था, 4 to 10 टाइम्स ज़्यादा लगता था फर्टिलाइजर्स। नाउ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट 1950 to 1990। ओके, इंडियन इकोनॉमी इनहेरिटेड स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर फ्रॉम ब्रिटिश रूल। सो इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट अंडरटूक वेरियस मेजर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद क्या क्या देख लेते एक बार, फटाक से एक समराइज में देख ले क्या क्या जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए किया गया, गवर्नमेंट ने क्या किया। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये 2 पॉइंट हो गया, समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद बिटवीन 1950 एंड 1990 देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू व्हाट, ग्रीन रेवोल्यूशन। द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी बिटवीन 1950 एंड 1990 कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली बट द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट, बट नॉट द पॉपुलेशन डिपेंडिंग। जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था वो डिक्लाइन किया, डिक्लाइन करने से क्या हुआ, मतलब क्या है इसका, खराब नहीं हुआ, अच्छा हुआ, क्योंकि अदर सेक्टर जो था इसके प्लेस में ले लिया। और क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ, पॉपुलेशन लेकिन डिपेंडिंग ऑन वो भी इस पे कम होने लगे। जो 75% थे आज के डेट में वो 40 to 45% आ गया है, तो बहुत अच्छा हुआ। इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर ने उसे उस जगह को भर दिया है। ठीक है,
around 65% of country population continued to be employed in agriculture even till 1990. So agriculture output could have been grown with much less people working in the sector, but industrial and service sectors were unable to absorb the extra people involved in agriculture. The involvement of such large proportion of population in agriculture was regarded as important failure of policy during 1950 to 1990. मतलब बहुत ज़्यादा आदमी इसमें क्या था, बहुत जन इन्वॉल्व हो गए थे, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गया था. सो ड्यू टू दिस रीजन इट वॉज नॉट वायबल. तो एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट होना भी बहुत ज़रूरी था. तो होप आपको ये बहुत लंबा हो गया होगा वीडियो, आपको होप पसंद आया हो. अगर समझ में आया हो तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें.